Hi everyone, welcome to this YouTube channel. Welcome back to this YouTube channel. Well, today we have a mock interview of KVS. Well, this interview is quite different. This interview is for a person who wants to become a teacher of KVS. When there are more than 1200 schools. Yes, please. All right, please Good come. afternoon, sir. Good afternoon. Have a seat, please. Thank you, sir. Your name is Damini, right? Yes, sir. Please have your introduction. Sir, my name is Damini. I am from Lakhimpur Kheri. Okay. I have done graduation from Kanpur University, Okay. and currently I am pursuing my B.Ed final year Okay. and working as an intern at St. Dominic Xavier College. Okay. And my hobbies are getting up early in the morning, reading newspaper and doing meditation. Very nice. So you love doing meditation. Yes, sir. Do you do every day? Yes, sir. That's good. So you are here for TGT or PGT? Sir, I am here for TGT. That's good. So why did you decide for KVS? Sir, KVS is a big platform to start my career. So I choose KVS to join as a teaching profession to start my career. Very nice. So Miss Damini, in which language are you comfortable? Sir, I am comfortable in the both language, but I will choose English. Okay, fine. So what is the meaning of Damini, first of all? Tell me. Meaning of Damini? Sir, the name, my name Damini is the Sanskrit origin. It means lightning or spark. Okay, fine. Yes, sir. You need to be more confident, right? Okay, fine. So, Miss Damini, would you please tell me that you could have taught or you may teach in any private schools. You can start your own coaching classes as well. But why did you think about, this KVS and TGT? Sir, I already have told you that KVS is a big platform for me to start as my career. Why this big platform? I mean, why? Because the KVS are the central schools provided by the government of India. Exactly. So this can be a good impression to others that I am going for KVS. Oh my goodness. So you Yes. want to become teacher because of name and fame? No, sir. So you said nice. No, sir. First of all, I am very passionate about the teaching. So That is what I'm saying, na Damini. You can teach in any coaching classes as well if you are passionate. Yes, Like you sir. can start your own coaching in Lakhimpur Kheri. So many Yes, students will come and you can earn more than KVS. If Sir. you are passionate, Yes, you sir. can teach. Yes, sir, I can teach, but I am trying for this opportunity. If I can get, so I will try. So, sir, हम try कर सकते हैं तो उसमें फिर क्या नहीं, है? आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा रेपुटेशन, उससे ज्यादा इज्जत, उससे ज्यादा नाम, उससे ज्यादा पैसा आप एक कोचिंग से कमा सकती हैं. Yes, तो sir. किस बात के लिए आप जो है KVS चुनी है? सर KVS मैंने इसलिए चुना है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. हाँ, पहले ठीक है. तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ एग्जैक्टली. कि पहले तो मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हूँ. हाँ, ठीक है. क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो फिर अभी मैं कोचिंग अपना कैसे लोग हम पे कैसे वो ट्रस्ट कर सकते हैं सही कि बात. मैं कोचिंग ओपन करती हूँ तो मेरा चल ही जाएगा. ठीक है, ठीक. All right, fine. So Miss Damini, can you please tell me that which subject have you chosen to teach? सर साइंस, Science, बायोलॉजी, biology. यस सर, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री. Beautiful. Okay, fine. So which subject is quite favorite of yours? सर आई लाइक मोस्ट बायोलॉजी Okay, as well as I can teach chemistry and physics also. that's beautiful. Okay, Yes. fine. So can I have some questions? Yes sir. Well, can you please explain about nervous system? Okay sir. Nervous system is a system that provides some our body that how to react. That sometimes that we feel cold and sometimes we feel hot. जैसे कि हम कभी कभी कप को चाय के कप को गर्म होते हैं उसको छू लेते तो एकदम से मेरा हाथ
रिएक्ट करता है। एग्जैक्टली राइट। तो ये आपने कभी सोचा होगा सर कि एकदम से क्यों होता है? राइट राइट राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं मतलब एवरीवेयर पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट राइट। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है कि हम चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं कि वो ठंडी है, गर्म है, इसका टेम्परेचर लो है या बहुत हाई है। तो ये नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हो पाता है। That's very nice. Yes, sir. Could you please let me know what you understand by HIV? Could you please explain me and could you make me understand what actually it is? Sir, this is human immunovirus. This is the full form of this HIV. सर ये एक एड्स का एक छोटा सा वायरस है जो कि ह्यूमंस में फैलता है। बहुत ही कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से फैलता है। जैसे कि अगर कोई एड्स से ग्रसित है तो उसके अंदर पहली बात तो ये वायरस होगा, HIV का वायरस होगा, जो कि कई कारणों से फैल सकता है। जैसे कि अनसेफ सेक्सुअल जो रिलेशंस होते हैं उसके थ्रू, और जैसे कि हम कभी कभी दूसरे का ब्लड का जो इंजेक्शन होता है, अगर कोई दूसरा पर्सन भी उसको डॉक्टर्स जैसे कि कभी कभार डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, तो सर वो उससे भी हो सकता है। अगर किसी को है तो वो इंजेक्ट होता है इंजेक्शन, तो ब्लड के थ्रू भी फैल सकता है। सही बात, वेरी नाइस। ठीक है, क्या आपको इंजेक्शन के बारे में जानकारी है? यस सर। ठीक है, आप मुझे बताएं IM और IV में क्या डिफरेंस है? IM और IV इंजेक्शन क्या होता है? IM IV इंजेक्शन क्या होता है? IM IV सर आई नीड टू ब्रशन अप माय नॉलेज अबाउट दिस। आई एम नॉट कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंजेक्शन TT का लग रहा है तो वो कौन सा इंजेक्शन हो सकता है? सर यहाँ पे वो वैक्सीनेशन के होते हैं सर। नहीं, फॉर एग्जांपल TT के लिए मान लीजिए किसी लोहे से टेटनस से इंजेक्शन अगर मैं लगवा रहा हूँ तो मोस्टली यहीं पे लगता है ना, हिप पे भी लग सकता है बट यहाँ पे ज़्यादा लगता है, तो उस इंजेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। सो दामिनी, आप जो है बायोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, राइट? क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? सर एक्सपीरियंस just I have told you that I am pursuing my B.Ed. So I have taught that 1 month practice teaching. Okay. 20 lesson plans in bio. Beautiful. And 20 in science. Okay. Physics plus chemistry. True. Okay. And from 10th of January, it has been 2 months. I am teaching as an intern there. Wow, beautiful. Yes, sir. So, Damini, how can you generate interest in the class so that students can be involved? They can just, mingle with you. They can happily learn. सर मैं इसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखूंगी कि उनको सोचने पे मजबूर करें कि ऐसा भी हो सकता है। Okay, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक चीज ले सकते हैं कि हम नॉनवेज जब खाते हैं तो वो भी क्यों नहीं डाइजेस्ट होता पेट में, जबकि हमारे बॉडी के अंदर भी पार्ट जो होते हैं वो भी मीट उस तरीके का ही होता है। एग्जैक्टली, सही बात। वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? तो ये सोचने पे उनको मजबूर कर सकता है। तो इसको पढ़ने के लिए वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे, शो करेंगे। एग्जैक्टली। जैसे इमेजिन करिए कुछ ऑकवर्ड ऐसे क्वेश्चन हो गए क्लास में, हो सकता है रिप्रोडक्शन के ऊपर हो गए, सेक्स के ऊपर हो गए, तो आप उस ऐसे क्वेश्चन को, दोनों जेंडर्स बैठे हुए हैं, लड़की भी लड़का भी है, ऐसा जो है अमूमन ऐसा होता है कि ज़्यादातर टीचर्स इग्नोर कर देते हैं कुछ टॉपिक्स को, राइट? वो नहीं पढ़ाते हैं, राइट? तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे पढ़ाएंगे जिससे बच्चे भी कंफर्टेबल रहे और आप भी कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकें? सर जैसा आपने कहा कि ये एक टॉपिक ऐसा ही है कि रिप्रोडक्शन जो कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं बच्चे। एग्जैक्टली। बच्चे भी और टीचर भी इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टीचर भी अवॉइड करता है कि ये ना पढ़ाना पड़े या ना पढ़ाए, लेकिन जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करी है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ने बहुत ही कंफर्टेबल होकर के पढ़ाई करी है, तो मैं उसी तरीके से मैं भी उनको पढ़ा सकती हूँ। बिल्कुल माहौल में कोई वो नहीं, जैसे कि एक स्टडी को उस तरीके से हम ले सकते हैं, तो कोई उस तरीके का माहौल ही नहीं क्रिएट होता है कि हम उसको स्टडी की तरह ले रहे हैं, ना कि उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनली वो हो रहा है। तो आपका अप्रोच क्या रहता है? जैसे कुछ मैंने जिस टीचर से पढ़ा, मैं बहुत ही उनका धन्यवाद करता हूँ, वो इनडायरेक्टली पढ़ाते थे, बड़ा मज़ा आती थी। मतलब बहुत ज़्यादा ओपनली ना हो, Yes, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट चीज़ें होती है, आदमी ओपनली पढ़ा दे भाई ये है,
Yes, तो sir. आपका क्या अप्रोच रहता है, ओपनली या फिर इनडायरेक्टली सर कुछ? इनडायरेक्टली पहले तो स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्टली हम, ठीक है। फिर चीज़ें इतना इनडायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते। अभी जैसे 6 to 8 में तो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं है, लेकिन बड़े क्लास में तो हमें सारी चीज़ें ओपनली पढ़नी नहीं, पड़ती बड़े के लिए तो ठीक है, वो तो अंडरस्टैंडेबल, बच्चे समझ जाते जी, हैं। छोटे बच्चों में कैसे तो मेंटेन? छोटे बच्चों में जितना सिलेबस है उतना हम बहुत आसानी से पढ़ा सकते सही हैं, बात, जितना सही ज़रूरत है वो आराम से समझ जाएंगे। और Very इस nice. जनरेशन के बच्चे तो एग्जैक्टली ऑलरेडी ठीक है। ओके दामिनी, वेल दामिनी, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ टीचिंग? सर मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उनको जो कि समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, प्रोजेक्ट हो गया, मॉडल हो गया, एक्टिविटी हो गया, कुछ भी कराना हो, मैं कुछ भी करके उनको ये शेयर करूँगी कि उनको समझ में आए चीज़ें। ठीक So है। I will try my best to make them understand about the concept. Very nice, very nice. Well, how do you motivate yourself? For example, you're hopeless and you don't feel like teaching. In that situation, how will you motivate yourself? सर मैं अपने आप को मोटिवेट ऐसे रख सकती हूँ कि जैसे मैं मेडिटेशन तो डेली करती हुई हूँ, तो उससे मेरा स्ट्रेस एंजाइटी रिलीज होता है। True. तो वो तो एक सबसे अच्छा एक पॉइंट है कि मेडिटेशन तो सबको ही करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर स्ट्रेस से एंजाइटी हो रहा है, तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक है, ठीक और है। बाकी अपनी कुछ बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मोटिवेशन के लिए बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी जिनकी बायोग्राफी पढ़ के हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। Right, true. Okay, fine. So, can you please tell me about what kind of teacher are you? Like salary based or syllabus based or target based? Sir, I am a teacher that first of all I will go for that student will understand my teaching Okay. clearly. पहले तो उनको मेरे से कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो मैं देखती हूँ। अगर मैं उसके एलिजिबल हूँ, लायक हूँ अगर पढ़ाने लायक, तो मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि अगर स्टूडेंट्स मेरे से समझ पा रहे हैं तो तभी मैं टीचर अपने आप को मानती हूँ। तो किस चीज़ पे आप आधारित हैं, सैलरी पर या टारगेट पर या सिलेबस पर? सर सिलेबस तो पढ़ाऊंगी, साथ साथ में टारगेट ये रहेगा मेरा कि बच्चे मुझसे एक अच्छे वे में अपना नॉलेज गेन कर सके और उसको आगे चल के यूटिलाइज कर सके। तो इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड है? सिलेबस एंड टारगेट बेस्ड दोनों? यस सर। चलिए ठीक है। ओके दामिनी, केमिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज आपके पास? यस सर। ठीक है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट केमिकल बॉन्ड? यस सर। व्हाट इज दैट? केमिकल बॉन्ड डिफरेंट टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे कि एलिमेंट सर ये होता है कि जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, तो H2 एक एलिमेंट है। और एलिमेंट क्यों है सर? क्योंकि इसमें वन टाइप ऑफ एटम है, ठीक है। तो इसलिए ये एटम हो गया। ठीक है। जब दो एलिमेंट एक में कंबाइंड होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। ठीक है। तो वो कंपाउंड कैसे बनता है? जब दो एलिमेंट ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे? एक बॉन्ड होगा, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है। यस सर। वेरी नाइस। कैन यू मेक वन लंग्स? वन Lungs you have to make within 20 seconds. The time starts. All right. Yeah, very nice. Beautiful. All right. So, Ms. Damini, can you please tell me about organic chemistry? What do you understand by that? Sir, organic chemistry is sir, I'm not sure. So I Okay, need- no problem. Physical chemistry? Sir, physical chemistry is chemistry that where we use daily जो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं और जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो डेली लाइफ में हमें उनसे गुजरते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और जो हमारी एयर होती है एटमॉस्फेयर में, वो एक हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है कि ठीक हम है। उनसे डेली हमारा सामना होता है। ठीक है। जनरल नॉलेज का कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड? यस सर। ओके। चंद्रयान 3 जब गया था चांद पर, आपने सुना होगा चंद्रयान 3, यस सर। क्या कुछ
तलाश पाया था, ढूंढ पाया था? हाँ सर, वहाँ पे चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जब अब सक्सेसफुल हुआ था, यस सर। तो लैंड करने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्कवर हो पाया था, कोई गैस? गैस तो नहीं, लेकिन वहाँ पे शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट वहाँ पे शायद वाटर की कुछ ड्रॉप्स चलिए देखी ठीक गई है. थी। Okay, very nice, no problem. Can you please explain about ecology? What do you understand by that? Ecology, interaction between plants and animals, that is known ecology. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉरेस्ट में बहुत एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, एनिमल्स लाइक लेपर्ड, गोट, जिराफ, मैनी। सो प्लांट्स भी वहाँ पे होते हैं, बहुत बड़े, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। तो वहाँ पे एक चेन होता है, जैसे कि बर्ड जो होता है वो स्नेक को खाता है, ठीक है। और जो गोट होता है और लेपर्ड, ये लेपर्ड जो होता है, टाइगर होता है, ये अपने से छोटे एनिमल्स को एज ए फूड वो लोग खाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक चैन चलता है, जैसे कि जो जितना ताकतवर होता है वो वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करता है। तो वो इकोलॉजी हो गई सर, इंटरेक्शन किस तरीके का वहाँ पे है इन द फॉरेस्ट, तो वो इकोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या आप थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर, बायोकेमिस्ट्री जी। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, HCl हो गया जो कि हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि केमिस्ट्री में वो यूज़ होते हैं। तो एमिनो एसिड्स हो गया, जैसे कि प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री में ही देखते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं ब्लड में? ब्लड ग्रुप सर ए होता है, बी पॉजिटिव होता है, AB and O, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन ब्लड ग्रुप्स डोनर होते हैं? सर AB डोनर है, और O जो होता है वो सबका ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता सर। ठीक है, ऑलराइट, फाइन। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA? यस सर। व्हाट इज दैट? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो DNA होता है। कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज? यस सर। DNA, inside DNA there is present RNA. Okay. RNA is ribose nucleic acid and DNA is the deoxyribose nucleic acid. So there is sir, I am forgetting that particular word. There is one difference: ATGC present in the DNA and AUGC present in RNA. That is biggest difference between RNA and the DNA. ठीक है. Why should I hire you, Damini? What is unique about you that I can hire you today? Yes sir. Sir, मैं सोचती हूँ कि I can teach in your Every school. teacher has told and tells that they can teach. Yes sir. So what is unique about you that I can just hire you today? सर, मेरे अंदर जो यूनिकनेस है, I can teach the students. मेरा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि मेरा मानना ये, बच्चों को जब तक समझ नहीं आता तब तक हम अपना एफर्ट डालते रहेंगे। ठीक है। अगर आप से बच्चे कुछ लेकर इरिटेट हो रहे हैं, यस सर, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी वजह हो सकती है, क्या आपके अंदर वो एनालिसिस या कुछ ऐसा आप उनको रीड कर सकती हैं कि वो बच्चा मुझसे खफा है या मुझसे नहीं समझ रहा है? क्या आप बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ लेती हैं? यस सर। ओके। बिल्कुल, जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद टीचर मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, या कुछ एनालिसिस, ऑटो एनालिसिस कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स वो भी कर सकते हैं कि ये टीचर हमारे ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, उसको क्यों, ये चीज़ें तो नॉर्मली सर सोच सकते हैं बच्चे। राइट। तो एज अ टीचर मैं सोचती हूँ कि बच्चे की साइकोलॉजी समझने के लिए उनको बहुत ही पोलाइटली पहले तो उनसे बात करनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा अगर शांत बैठा है, अलग बैठा है, तो वो क्यों बैठा है। ठीक है। शायद वो अपनी चीज़ें नहीं बोल पा रहा, रख पा रहा है, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। अगर हम उसको डांटेंगे तो वो और भी डर जाएगा। और वो बच्चे तो टीचर से वैसे भी डरते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा प्यार से और पोलाइटली उनसे बात करी जाए, थोड़ा उनको एक्स्ट्रा अटेंशन उन पे करी जाए, ऐसे बच्चों पे, तो हम उनको
समझ सकते हैं सर। ठीक है, वेरी नाइस. Why did you think that you should start teaching? Any motivation behind teaching? यस सर, माई मदर, आई हैव टोल्ड यू दैट माई मदर इज़ ऑल्सो अ टीचर. तो मैं बचपन से उनको देखती थी कि वो पढ़ाती थी, और मैं भी बचपन से मैं अपने भाई को होमवर्क कराती थी, तो मुझे मज़ा आता था. कहता था दीदी मुझे समझ में आ रहा, आप समझाते तो मुझे समझ में आ रहा है. तो मैं सोचती थी कि मेरे अंदर वो स्किल है कि इस बच्चों को समझा सकती हूँ एक इजी वे में. ठीक है, वेरी नाइस. तो So what if I say, Damini, that I'm sorry I do not select you today? यस सर. What will you do? What if I reject you today? I'm sorry I cannot select you. ओके So सर. what will you do? सर मैं पहले अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करूंगी कि मेरे से कौन सी गलती हुई या मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, तो उस पर मैं अपना वर्क करूंगी. तो अभी आप बताइए किस वजह से आप रिजेक्ट हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या गलती आपने किया कि आप रिजेक्ट हो? सर मेरे हिसाब से तो लगता है मैंने शायद कोई गलती नहीं करी है. सो यू सर, ये सब आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप इसको वो करें तो ज़्यादा अच्छा ठीक रहेगा. है, वेरी नाइस. ओके दामिनी, अगर मैं आपको आज सेलेक्ट करता हूँ तो आप किसको क्रेडिट देंगी पहले? अगर आज KVS के लिए आप सेलेक्ट हो जाती हैं Yes, sir. तो पहले क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर क्रेडिट तो सबसे पहले मैं अपने गॉड को देना चाहूँगी, ठीक है, देन माई पेरेंट्स, वेरी नाइस. और मैं अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा Wow, अटैच wow. हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट किया है हर चीज़ में. वेरी नाइस. तो मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा वो हक करूँगी, तो उनको ठीक है, थैंक्स ठीक है, बोलूँगी. वेरी नाइस. एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये क्वालिटी अगर हो तो टीचर टीचर कहलाना चाहिए? यस सर. सर टीचर के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, ठीक है. ठीक है, और गुड लिसनर तो होना ही चाहिए, और बहुत ही डेडिकेटेड होना चाहिए ठीक है. टीचिंग को लेकर के. ये नहीं कि टीचिंग कर रहे हैं साथ में कुछ और भी कर रहे हैं. तो टीचिंग को लेकर के अपना डेडिकेशन तो होना चाहिए, और गुड लिसनर तो होना ही चाहिए सर. ठीक है, तो वेरी ये सारी नाइस. चीज़ें होनी चाहिए. ऑलराइट, क्या आपके पास डू यू हैव एनी अदर क्वालिटी एक्सेप्ट टीचिंग, राइट? डांस और एनीथिंग? Sir, I am not a professional dancer, but I can dance You can dance. as well as I can sing also. Beautiful, beautiful. All right. Do you have any weakness that you think? सर Any वीकनेस तो यही चीज़ है, अगर मैं किसी को भी थोड़ा परेशान देखती हूँ तो मैं भी हो जाती हूँ परेशान, मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ. Oh my goodness. Yes, sir. When did you cry last time? सर मुझे जहाँ तक याद है कि सर मैं कब रोई थी आप लास्ट टाइम? सर आई डोंट हैव सर, मुझे इसके बारे में क्या आंसर देना नहीं पता सर. All right, no problem. ठीक है, fine. Could you please tell me the financial crisis or the background of your house? Sir, could you please repeat again? My question is that can you please tell me about your family background? Okay, sir. Sir, my father is a farmer and he's living Lakhimpur Kheri. We are 5 siblings, 3 sisters and 2 brothers. Okay. My elder brother is veterinary officer and my elder sister is a bank manager. She is posted in Delhi. Okay. And my one elder sister is here, and my one older younger brother is working, is studying in Faizabad veterinary course. Yes, sir. ठीक है, very nice. Do you have an experience of teaching? Sir, I am intern, Okay. so I am teaching as an intern, and I am doing my internship. Very nice. Yes, sir. ठीक है. What was the percentage in high school? So 68.5%. Why very less? Sir, I don't think it is less in my point of view. Many people actually, so many teachers I have taken interview today, they have got more than 75, 80. Yes, sir, yes. But why did you get only 68%? 68%. What do you think? It's much or it's quite less or it is okay? Sir, I did my best. So I think, and point of my view, that it is good. It is good. Koi nahi? All right, fine. Well, there are more than 1200 schools of KVS, Yes, sir. right? Is there any KVS that you think कि काश वहाँ पे मेरा हो जाता, या नियरेस्ट कोई स्कूल कि काश वहाँ मैं पढ़ाती, कोई ऐसा ड्रीम आपका है? Sir, my first dream is to teach. Okay.
कहीं पे भी मौका मिल जाए? No, sir. Teaching is my dream. हाँ, Then definitely I will try. If I get my opportunity, then I will try. okay. So first of all, I got my opportunity in this KVS. So मैं इसके लिए ट्राई कर रही नहीं, हूँ. केवीएस के स्कूल तो काफ़ी है ना? Yes, sir. तो कौन से ऐसे केवीएस में कुछ लोकेशन होगा आपने सोच कर रखा होगा Yes, sir. कि काश यहाँ के स्कूल में मेरा हो जाता, तो Yes. कोई है ऐसा स्कूल? सर PM3 राष्ट्रपति भवन में मेरा ड्रीम है कि वहाँ पे अगर मेरा हो जाए तो अच्छा है. ठीक है, अगर आपको काठमांडू के लिए सेलेक्ट किया जाए तो विल यू बी एबल टू गो देयर? काठमांडू तो दूसरी कंट्री में, नेपाल में, तो सर मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा कि वहाँ मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. Okay, वो ठीक दूसरी कंट्री, वहाँ का क्लाइमेट और ये सब कुछ थोड़ा डिफरेंट है. चलिए ठीक है, वेरी नाइस. सो So good afternoon class. गुड आफ्टरनून. How are you all? फैंटास्टिक. Okay, sit down. So what is going on here? We are Are we- learning something, right? Yes. You are learning English? Yes. Okay. So do you like English? Yes. Okay. What do you like in English? Okay. Tell me you. What's your name? What's your name, brother? Yes. Yeah. My name is Muhammad Javed. Okay. So tell me what do you like in English? I like English because I learn English. Okay. Okay. Sit down. Very good. Next, you. What's your name? My name is Udo Okay. Why do you like English? because I want to speak English. Yes. Very good. That's very good. Okay. So do you know something about science, biology? Okay. So tell me how many pairs of chromosomes present in the human body? 24. 24? What is 24? 24 chromosomes. Okay. Can you anyone tell me? Anyone else? Yes, yes, come on. I know you all know about. This is very basic concept. Yes, ma'am, 23. 23? Yes. 23 Yes. pairs. Yes. Total is 46. 46. Very good. Sit down. वेट मैम बहुत अच्छा जा रही हैं आप, Yes, sir. लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था. आपको किसी भी पहली क्लास में जाना, आई थिंक पहले इंट्रोडक्शन मैटर करता है. हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जा Sir, सके. name I have to tell. हाँ, कि them? मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चों, मैं आपको पढ़ाने आई हूँ, राइट. थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी में, राइट. फिर से आप इंट्री लीजिए, राइट. ये लोग खड़े नहीं होंगे, बस आपको आना है फटाक से. Okay, sir. अपने बारे में, अपना अनुभव, अपना तजुर्बा, मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, ताकि ये खुश हो जाए. तुरंत क्वेश्चन पे आ जाएंगे, वो लोग डर जाएंगे बच्चे. Okay, sir. हाँ एग्जैक्टली, ये पहले दिन टेस्ट. हाँ एग्जैक्टली. क्या पूछा? यस. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, everyone. How are you all? फाइन मैम. Okay. So I am your teacher here, and I will today I will teach you some very easy topic. Okay. ओके. So subject which you like most. Okay. What you want to study in this class? English. Okay. So do you know anything about science, biology, chemistry, physics? I think you should you know basic things. Yes, yes. Yes, I know basic. Basic things. Okay. So tell me. Okay, I'll tell you first of all. I am going to tell you. I am going to teach you physics. Okay. Suppose if you are playing in the field. Okay. Football. When you kick the football jumps. Okay. वेट, आई एम सॉरी. फिर आप टॉपिक पे आ गए. Yes, sir. उनको बताना मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आपके सामने आज आई हूँ. वो कह रही कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है. इसका मतलब आपसे वो बायोलॉजी या साइंस नहीं पढ़ना चाहेंगे, राइट. तो बच्चों इंग्लिश तो पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा बायोलॉजी फोकस करते हैं आज. कम और क्या कहना है, थोड़ा सा इनको एंजॉय करा देना है. Okay, sir. है ना. और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, राइट. मैं आपके सामने आ गई हूँ, जो भी आपको समझना है समझ ले. दीदी, भौजी, चाची, जो भी समझना है. कम ऑन गाइस. थोड़ा अब देखो मुस्कुरा दी, बस यही चाहिए. Okay, sir. आते ही तुरंत खड़ूस बन जाएंगे ना.
एक होता ना इमेज मेक ओवर, हाँ जो भी है इमेज मेक ओवर होता है या फिर इमेज मेकिंग मैं कह सकता हूँ। पहली बार में आदमी की इमेज बनता है। अगर पहले ही खड़ूस दिख जाएंगे तो साल भर आप खड़ूस रहेंगे। पहले इंटरटेनिंग, कम ऑन गाइस आई विल टीच यू समथिंग स्पेशल, जैसे एजुटेनमेंट मिलकर आएंगी तो वैसा आपका इमेज बन जाएगा। तो वहां जाने के बाद एक तगड़ा इमेज बनाने की कोशिश करिए। आइए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सक्यूज मी आप बहुत अच्छी लग रही है, क्या नाम है आपका? आप देखो मुस्कुरा दी हैं, बस वो आप ये पसंद करेंगे आपको कि मैम ने मुझे मेरी तारीफ की, एक्सक्यूज मी सर आप बड़ा अच्छा स्माइल कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? बस यही सब करना है। वांट टू स्टडी बायोलॉजी। Biology? Yes. Okay, so I'll teach you. I am very weak in biology. Okay, so I will tell you. I'm also weak in physics. Physics? Oh. Ma'am, she is not good. She is always disturbing me in the class. Okay, why you both fight each other? She But- stole my bag yesterday. Is it correct? No, ma'am. Yes. He is telling lie. He is telling lie. Yes, ma'am. Are you Toba, telling lie? Toba. I never tell a lie. Yeah, he also saw. You saw that she. Ma'am, I will beat her today. No, that's not good. You are in a same class, Sorry, ma'am. so Ma'am. you should. Ma'am, I want to learn about ecology. Can you please tell me? Yes, ecology. Ecology. The term is ecology, related to the relationship between plants and the animals. Okay. Okay. सपोज जैसे कि फॉरेस्ट में प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए और टाइगर हो गया, ठीक है। तो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको टाइगर्स एज अ फूड वो ईट कर लेते हैं, ठीक है। Right, right. और जो प्लांट्स होते हैं वो हमें शेल्टर, वो प्लांट एनिमल्स को शेल्टर के रूप में उनको देते हैं कि रहने के लिए जगह उनका, और ये सब जगह वहाँ पे वो लोग रहते हैं। Right. तो हाँ. शेल्टर जैसे आपको रहने के लिए कुछ दिया जाता है, आप अपने घर में रहते हो तो आपका वो प्लेस है, शेल्टर है, ठीक है। तो इसलिए उनका घर फॉरेस्ट होता है, दिस इज शेल्टर, जो कि पेड़ पौधों से ही उनको मिलता है। अगर वो ना हो तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, Right. ठीक है। जैसे कि बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, तो वो उसके जो फॉरेस्ट होता है वो अपना अपना वहाँ पे घर बना लेते हैं उस एरिया में, ठीक है। तो ये इकोलॉजी मतलब कैसे वो लोग रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ सरवाइव करने के लिए, ठीक है। Right. आप लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. That's Ma'am, very good. Physiology क्या होता है? फिजियोलॉजी, Yes. फिजियोलॉजी इज द वर्ड दैट आप जैसे ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। Right. सर नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे किसी चीज को टच करते हैं तो हमें गर्म या ठंडा फील होता है, Right. तो वो नर्वस सिस्टम होता है। नर्व्स जो होती है हमारी, वो हमें फील कराती है कि ये चीज ठंडी है या गर्म है, तो नर्वस सिस्टम हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, Right. तो वो कैसे फंक्शन करता है, तो फंक्शनिंग को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। Very nice. Yes. बहुत अच्छे, ठीक है। सो आप लोग को समझ आया कि हमें क्या Yes, पता है? ma'am. ठीक है। ओके, वेरी क्लास गुड। को खत्म करिए, कैसे खत्म करेंगे? सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू क्लास। होमवर्क के लिए कुछ बोलिए, होमवर्क के लिए अगर कुछ कहना होगा, समझाना होगा। होमवर्क के लिए आप थोड़ा करके आएंगे स्टडी घर से, तो उसके लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आइए, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू। नोट डाउन द होमवर्क। ओके, थैंक यू क्लास। कोई नहीं, it was really nice to talk to you. I will let you know whether you are selected or not by evening today. ओके सर।